Dear students, today we will discuss about compound microscope, class 12, ray optics. Compound microscope. In compound microscope, we have already discussed simple microscope. Simple microscope, in simple microscope we need only single convex lens. But in case of compound microscope, we need two lenses, convex lenses. We need two convex lenses having small focal length. And the lens which is close to the eye, this is called the eye lens, this is called eye lens, close to eye. And the lens which is close to object, this is called the objective or object lens. Two lenses are required, convex lens having low focal length. The lens which is close to the object is called objective or object lens, and the lens which is close to the eye is called the eyepiece or eye lens. And the aperture of the eye lens is slightly greater than the objective. Now, if we place an object very close to the focus, then its real image will be formed. You see, we have taken a ray through optical center, it passed straight. Another ray parallel, after refraction it passed through focus and meet at point, this point. And if we draw a perpendicular line, then this will be the image, real image of object AB. A dash, B dash, this is A dash, this is B dash, is the real image of object AB formed by the objective. A dash, B dash is the real image formed by the objective of the object AB. Now, the eyepiece is placed in such a way that the image A dash B dash will be formed inside the focus of the eyepiece. The focus of eyepiece is here, FE, and this is A dash B dash is within its focus. So, virtual bigger image will be formed, and its image, this is object for the eye lens, and its image is A dash, A double dash, B double dash. This is A double dash, this is B double dash. What I have told? देखो, हम लोगों को दो लेंस रिक्वायर्ड, कॉन्वेक्स लेंस, दोनों का फोकल लेंथ कम होना चाहिए. दिस इज कॉल ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्ट का पास जो होता है ऑब्जेक्टिव, आई का पास जो होता है आई पीस. अपर्चर ऑफ द आई पीस इज स्लाइट ग्रेटर देन ऑब्जेक्टिव. दैट मीन्स कि इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है. नाउ ए बी इज द ऑब्जेक्ट. इसको ऑब्जेक्टिव का फोकस का बाहर में प्लेस किया, तो इसी कारण से क्या होगा, इसका रियल इमेज होगा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश. दिस इज ए डैश, दिस इज बी डैश. ए डैश बी डैश इज द रियल इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी. नाउ अभी क्या हुआ, ए डैश बी डैश आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट है, लेकिन ए डैश बी डैश आई पीस का फोकस का अंदर में प्लेस हुआ. दिस इज द फोकस ऑफ द आई पीस. एफ सफिक्स में ई, एफ सफिक्स में ई. सो ए डैश बी डैश आई पीस का फोकस का अंदर में प्लेस हुआ, इसी कारण से फॉर्म हुआ. इसी कारण से इसका वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा, बिगर साइज. एंड ए डैश बी डैश is the object for eye lens
and its image is formed at A double dash B double dash, and the object is AB is placed in such a way that the final image is formed at the least distance of distinction from the eye. Eye is very close to eye lens, and we are considering that the final image will be formed at D. D means least distance of distinct vision means 25 centimeter. Clear? Now, here you see पैरेलल रे थ्रू फोकस गया, ऑप्टिकल सेंटर से जो गया वो यहाँ पे मिला। इसके बाद यहाँ से देखो एक रे ऑप्टिकल सेंटर से पास किया, वो तो स्ट्रेट गया, अनदर रे पैरेलल लिया, इसके बाद वो उसका फोकस से गया। ये दोनों मीट नहीं होगा, ये दोनों को पीछे से बैक किया, यहाँ पे मिला। तो दिस इज A double dash B double dash is the final image of the object AB, and we have shifted AB here. We have shifted AB here क्योंकि हम लोग को ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन में ज़रूरत है। अभी क्या ज़रूरत, अभी हम लोग एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैग्नीफाइंग पावर, एंगुलर मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर कैपिटल M से डिनोट करता है, एंड दिस मीन्स दिस इज द रेशियो ऑफ एंगल फॉर्म बाय द इमेज टू द एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ आर एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन। एंगल फॉर्म बाय द इमेज to the angle formed by the object. Here you see, this is the image, its angle is beta, this is beta, this angle is beta, this angle, and object is making angle alpha, this is alpha, so beta by alpha, this is beta by alpha. If alpha and beta are small, then we can write this is equal to tan beta by tan alpha. Tan beta means from this triangle A double dash B double dash C2. What we can write? A double dash B double dash by C2 B double dash by tan alpha. A double dash A1 B double dash A1 B double dash by C2 B double dash. So C2 B double dash cancel. So what we are getting? A double dash B double dash by A1 B double dash. A1 B double dash means AB. This side and this side is same. So we can write this is equal to A double dash B double dash by A B. Now we divide and multiply by A dash B dash. This can be written as A double dash B double dash by A dash B dash by AB by A dash B dash. You can write this. A dash B dash से दोनों को डिवाइड किया, इसको भी A dash B dash से डिवाइड किया, इसको भी A dash B dash से डिवाइड किया. Now you see, this can be written as A double dash B double dash by A dash B dash into A dash B dash by AB. But what is this?
size of image by size of object for eye lens. So this is ME, and this is size of image by size of object for object lens. So this is MO. Linear magnification of eye lens and linear magnification of objective or object lens. Now what is MO? Now what is MO? Means V by U. So V naught by U naught, because this is for objective. O means objective. And now our aim is to find ME. So for eye lens, what we can write? 1 by V minus 1 by U equal to 1 by F. So अब आई लेंस के लिए ई सफिक्स दिया, वी से मल्टीप्लाई कर दो, वी ई बाई वी ई माइनस वी ई बाई यू ई इक्वल टू वी ई बाई एफ एफ ई. Now this is 1 minus what is VE by UE? This is the linear magnification of the eye lens. So this is ME what is ME? So ME equal to 1 minus VE by FE. But what is VE? Now VE equal to, you see, VE equal to D, left side, so minus D. Therefore ME equal to 1 plus D by F E. This is ME. So what is capital M? Therefore capital M equal to MO is VO by UO, VO by UO into 1 plus D by F E. Now you see, if this object, if the object is very close to FO, focal length, if UO very close to FO, that means कि we can write UO equal to minus FO, left side, and then VO will be equal to L, tube length. This is the length of the tube. Then VO equal to L. So what will be the expression? Therefore M equal to minus FO by, minus L by FO into 1 plus D by F E. This is the expression for magnifying power of compound microscope. What we have told? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए हम लोग को दो कॉन्वेक्स लेंस लगेगा, दोनों का फोकल लेंथ कम होना चाहिए. एपर्चर ऑब्जेक्टिव से आई पीस का थोड़ा बड़ा होगा. इसके बाद ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है ऑब्जेक्टिव का जस्ट फोकस का बाहर में, तो इसका रियल इमेज होगा. सो इसका रियल इमेज फॉर्म हुआ
यहाँ पे। अभी जो इमेज फॉर्म हुआ वो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट होगा एंड वो आईपीस का फोकस का अंदर में फॉर्म हुआ, इसी कारण से इसका वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। सो A dash B dash is the object for iLens and its image is formed A double dash B double dash। अभी हम लोग को मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए हम लोग AB को यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, ऑब्जेक्ट एंड इमेज दोनों को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन में मैंने सेट कर लिया। ऑब्जेक्ट को प्लेस में चेंज करके फाइनल इमेज जो फॉर्म हुआ वो डी में मैंने प्लेस कर लिया। इसका और इसको शिफ्ट करके यहाँ पे ले लिया। अभी देखो जो इमेज है वो बीटा एंगल बना रहा है, जो ऑब्जेक्ट है वो अल्फा एंगल बना रहा है। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन मीन्स क्या है, बाय मैग्नीफाइंग पावर मीन्स क्या है, बीटा बाई अल्फा। दिस इज द बीटा बाई अल्फा। एंगल स्मॉल होने से बीटा को tan बीटा लिख सकते हैं, अल्फा का tan अल्फा लिख सकते हैं। फॉर दिस ट्रायंगल A डबल डैश B डबल डैश C2 व्हाट वी कैन राइट tan बीटा इक्वल टू A डबल डैश B डबल डैश बाई B डबल डैश C2, दिस इज C2 B डबल डैश। एंड फॉर दिस ट्रायंगल tan अल्फा इक्वल टू A1 B डबल डैश बाई C2 B डबल डैश, A1 B डबल डैश बाई C2 B डबल डैश। C2 B डबल डैश C2 B डबल डैश कैंसिल। तो इसके बाद A डैश B A डबल डैश B डबल डैश बाई दिस मीन्स AB, सो AB। हम लोग क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को A डैश B डैश से डिवाइड किया। तो करने से इसको रिवर्स कर दिया। अभी देखो साइज ऑफ इमेज बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो आईपीस के लिए हो गया। सो दिस इज द ये लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस एंड A डैश B डैश बाई AB मीन्स दिस इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। बट लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या होता है, M इक्वल टू V बाई U होता है। सो ऑब्जेक्टिव के लिए VO बाई UO, वो मीन्स ऑब्जेक्टिव। एंड अभी ME निकालने के लिए हम लोग आईपीस के लिए वो लेंस फार्मूला यूज़ किया, दिस। इसके बाद V से इंटू किया, इसके बाद V बाई यू मीन्स मैग्नीफाइंग लीनियर मैग्निफिकेशन होता है, एक इसके लिए आईपीस के लिए। सो ME दिस वहाँ से लिखा। अभी देखो VE इसके लिए जो इमेज फॉर्म हुआ लेफ्ट साइड में हुआ ना, एंड दिस इज इक्वल टू D। सो इसलिए VE इक्वल टू माइनस D, VE इक्वल टू माइनस ई लिख दिया माइनस D, VE इक्वल टू माइनस D। तो यहाँ पे प्लेस कर दिया तो हम लोग को मिला ME इक्वल टू 1 प्लस D बाई FE। सो अभी व्हाट इज M, सो M इक्वल टू ME इंटू MO था ना, तो MO इज VO बाई UO, VO बाई UO। ME इज 1 प्लस D बाई FE, 1 प्लस D बाई FE। अभी हम लोग क्या बोल रहा हूँ, जो ये ऑब्जेक्ट सपोज इसका पास में ला लिया लाइक दिस यहाँ पे, तो इन दिस सिचुएशन UO नियर इक्वल टू FO फोकल लेंथ, बट वो लेफ्ट साइड में है इसलिए हम लोग लिखा माइनस FO। तो अब क्या हो जाएगा, वो जब इधर जाएगा वो इमेज VO इसका पास आ जाएगा, दैट मीन्स कि L का बराबर हो जाएगा। तो इसलिए VO इक्वल टू L यहाँ पे प्लस कर दिया, VO L, UO मीन्स माइनस FO, सो माइनस इंटू 1 प्लस D बाई FE। अभी देखो ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होगा। माइक्रोस्कोप के लिए जो इमेज फॉर्म होगा वो ऑलवेज इन्वर्टेड होगा। माइक्रोस्कोप के लिए जो इमेज फॉर्म होगा वो ऑलवेज इन्वर्टेड होगा, ठीक है। और यू सी दिस इज फॉर नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। माइक्रोस्कोप का नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में होता है। अभी माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर
और मैग्नीफाइंग पावर बढ़ाने के लिए हम लोग को क्या ज़रूरत है, देखो FO एंड FE दोनों लेस होना चाहिए। FO एंड FE दोनों लेस होना चाहिए। FE से भी FO लेस होना चाहिए। दैट मीन्स कि फोकल लेंथ ऑफ FO शुड बी लेस देन द फोकल लेंथ ऑफ FE। इसी कारण से क्या होगा ना, फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होगा। FO ज़्यादा छोटा होने से क्या होगा, फील्ड ऑफ व्यू बड़ा होगा, तो इसीलिए हम लोग को जो माइक्रोस्कोप के लिए जो लेंस चूज करना है, दोनों का फोकल लेंथ कम होना चाहिए। आईपीस से ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ज़्यादा कम होना चाहिए। इससे क्या होगा ना, फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होगा। इसके बाद रिजॉल्विंग पावर भी ज़्यादा होगा। FO FE दोनों छोटा होने से रिजॉल्विंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा होगा। और हम लोग को दिस इज कौन सा एडजस्टमेंट, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, ठीक है। नियर पॉइंट एडजस्टमेंट मीन्स ऑब्जेक्ट शुड बी, इमेज शुड बी formed at the least distance of distinction. This is the near point adjustment, means image will be formed at the least distance of distinction. And for normal adjustment, that means ki image will be formed at the infinity, then the formula will be m equal to L d by FO into FE. This is for normal adjustment. This is the near point adjustment. हम लोग को जो डेरिवेशन है वो नियर पॉइंट एडजस्टमेंट के लिए ही है, ठीक है। वो फॉर्मूला याद करने से ही चलेगा। नेगेटिव साइन की यहाँ इंडिकेट कर रहा है, इमेज विल बी ऑलवेज इन्वर्टेड। ओके, ठीक से पढ़ना। बाय।